Hello and welcome to this Banega Swasth India Facebook Live. Vaccines are a very critical tool in this fight against COVID 19, but unfortunately, in our country, we see that the women are lagging behind. When we talk about the men women ratio, there's a difference about nearly 3 crore. So, why is this so? Is it because there are misconceptions, rumors, vaccine hesitancy? So, to talk about all this, we have a special guest with us, expert Dr. Sunila Garg. She's going to be talking to us about COVID vaccination and its impact on women. She's member Lancet Commission COVID India Task Force. She's also the director and professor community medicine Maulana Azad Medical College and also the president of OMAG and IAPSM. Thank you so much, Dr. Sunila Garg, for joining us today. The first thing which I want to ask you is that we just said that the women are lagging in the vaccination drive. Why do we see this trend? Why such a big difference? And is it more in the rural part of our country? Ambika, your question is very valid, but I will take you back. Empowerment of women has never been a priority, number one, in our country. Number two, if you look at NFHS data 5, which has been released, in December 2020, 60% of the women never used, internet in different states. So, and, 20% of the women are having smartphones. So that is the extent of empowerment. And to go to the facility, to get the treatment or to get the vaccination, they're so much dependent on their family members. So that is one thing which is very, very important. And that's how the women lag behind, basically as compared to men, because they have never been empowered, and gradually the change is happening, but it will take time. Okay, so another thing which we've been reading a lot of stuff. There are a lot of myths and misconceptions, like, a vaccine could cause infertility, disrupts the menstrual cycle. So do you think this hesitancy for women to actually take the vaccine is also somewhere it's got to do with these rumors which have been going? Definitely. This is not only with regard to the women themselves that they do have hesitancy. It's the families themselves. Who decides for women? It's their mother-in-laws. It's their, family, which family also will say, that, okay, if you're going to go for vaccination, maybe, you may suffer from infertility. You must first complete your reproductive cycle, or you may suffer from menstrual disorders. What is the, use of taking the vaccine? You are apparently healthy. So, as I told you, always, Ambika, women's health has never been a priority, kind of. And this has been true with regard to her reproductive choices also now. And the same thing is being applicable with regard to when we talk of COVID-19 vaccination, because apparently, if you see, she appears to be healthy. So that's what the family says, particularly. And this is where the difference comes, with regard to men and women, or with regard to a male child versus a female child. Of course, we don't have vaccines. Gender perspective looms at large in our society. So that's where we need to, kind of address this issue right now in different situations. We have got very good communication material, but it has to reach down, to the lowest level, so that last mile woman benefits from this. I think absolutely you put a very, very important point here, that it's high time, every time it's been the women suffering, whether it's nutrition, and now vaccine is a very critical. We've got our first question, Dr. Garg, and Navpreet is asking, can corona antibodies be transferred from mother to child if the lady is lactating and gets vaccinated? Definitely. It's a very, very positive point that, if the woman is lactating, you see, already the child is getting the benefit of antibodies also, so mother's milk is the best, and it's a complete milk. And on top of it, if the child is getting, the vaccine antibodies, there is nothing better situation than that, and which is a realistic and true thing. So that's where it is very, very important that those women who have not taken vaccination during their antenatal period, they must take immediately after their delivery, and they must follow all the precautions, so that basically they can feed the child, because the child will recognize the mother through the heartbeat. That is one thing which is very important. And that's where, he knows he's closer to the child, and mother can wear double mask, and she should feed the child. And definitely the child will get the benefit of mother's milk, as well as the antibodies which are transmitted through mother's milk as well with regard to COVID-19. Okay, so that's, I think, Navpreet, your question is answered. Shalini एक अगला सवाल पूछ रहे हैं कि she knows कि कई लोगों ने वैक्सीन ली थी और reported that the periods came early. वैक्सीन लेने के बाद डॉक्टर गर्ग कई लोगों के पीरियड्स जल्दी आ गए. So कुछ रिलेशनशिप है वैक्सीन और मेंस्ट्रुएशन का, या पीरियड्स जल्दी आने का? बेसिकली कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आप अगर उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि कई बार मैं
एक पर्टिकुलर जगह पे जाती हूँ तो मेरे साथ में कोई हेल्थ रिलेटेड इवेंट हो जाता है, तो मैं हमेशा उसको कोरिलेट करती हूँ, एक नॉर्मल सी नेचुरल प्रोसेस है। तो पर्टिकुलरली ये अगर ये एक साधारण सी बात है दिमाग में आना कि इस बार मैंने वैक्सीन दिया था और बहुत ज्यादा मुझे पीरियड्स आए या बहुत ज्यादा जल्दी आ गए, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसको हमें ये गलत धारणा को हमें जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए कि वैक्सीन का और मेंस्ट्रुएशन का या मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं, क्योंकि वो बॉडी के हार्मोन्स को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते। सो ये बेसिकली जो आपका बेसिकली फेज है विद रिगार्ड टू मेंस्ट्रुएशन, दे आर टू रियलाइज दैट एक ओव्यूलेटरी फेज होता है जिसको विड्रॉल होने के बाद मेंसेस होते हैं, उसका और कोविड-19 का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो बेसिकली ये गलत धारणा वो अपने मन से निकाल दे। तो ये जो गलत धारणा है ये बदलने की जरूरत है ताकि लोगों में क्लैरिटी हो और महिलाएं ने मतलब वैक्सीन को आगे जाके जरूर ले, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए। Dr. Garg, a question Dr. Priyanka is asking, which type of COVID vaccine is safest for pregnant and lactating women? You see, every vaccine today which is available, we have given lot of Moderna vaccines, Pfizer vaccines to the antenatal women in USA before we started talking about the vaccination in India. So in India we have got again this Covishield vaccine, Covaxin, and we have got Sputnik vaccine also. All the vaccines are safe in pregnancy, and they should be given. Rather, the harm of not taking the vaccine and which results in COVID-19 infection is much more dangerous, because the woman is going to have much more side effects of COVID complications or SARS-CoV-2 complications if she is not taking the vaccine, basically, that she has to remember. So one thing which is very, very important, and that is to be remembered, is that as and when the vaccine is available, because both the vaccines are safe, and now there is a priority. The government has also passed that, the recommendation that pregnant women and lactating mothers both should get the vaccine, and whichever vaccine is available, they must take that vaccine, as vaccines are safe during pregnancy, and she can take any time during pregnancy. I think that's again a very important point जो आपने किया है कि even the government has said. In fact, हमें बहुत सवाल आ रहे हैं, लेकिन I want to ask you something, Dr. Garg, कि काफी कुछ हम पढ़ते हैं, whether when we are, again, there are misconceptions, myths. So can you help us clear that? जैसे कहीं मैं पढ़ रही थी कि वैक्सीन क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है, ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि कंफ्यूजन है कि वैक्सीन शायद इनफर्टिलिटी दे, तो काफी लोग रूरल इंडिया में वैक्सीन नहीं ले रहे. So can you just help our audience, the viewers, to understand that, like there's so many myths. So if you can help clarify a few of these, please. देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अंबिका, दैट क्या वैक्सीन से क्लॉट्स हो सकते हैं या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पर्टिकुलरली ये एक लोगों में धारणा बन चुकी है कि ये थ्रोम्बोटिक डिजीज है कोविड-19 या इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, या इसकी वजह से बेसिकली हमारा इम्यून मैकेनिज्म डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। परंतु ये सोचने की बात है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि कोविड-19 वैक्सीन लेने से मेंस्ट्रुएशन का कोई भी संबंध नहीं है, चाहे वो ज्यादा मात्रा में आए या कम मात्रा में आए, उसका कोविड-19 से कोई संबंध नहीं। सिमिलरली क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स का, क्लॉट का बनना भी, इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें और बेफिक्र होके ही कोविड-19 का आपने जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगवाएं। तो इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो धारणाएं हैं इसको बहुत जल्दी हमें दूर करना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने अंबिका बहुत करेक्टली पूछी, कि उनको लगता है कि बेसिकली हमें ऐसे ना हो कि बांझपन हो जाए या इनफर्टिलिटी हो जाए। तो अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें, बेसिकली इनफर्टिलिटी कैसे होगी? इनफर्टिलिटी या तो कोई बेसिकली हम कहेंगे कोई प्रॉब्लम विमेन में है कि ओवम बनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या बेसिकली मेन में कोई प्रॉब्लम है, उसके पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, या तो बच्चा ना होना, या एक या बच्चे के होने के बाद में दूसरा बच्चा बहुत समय तक नहीं होना, जिसको कि हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इससे कोविड-19 वैक्सीनेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। ये बात बिल्कुल ही लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और तीसरी चीज ये भी बहुत गलत धारणा है कि क्या बेसिकली हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेने के बाद में क्या हमारा इम्यून मैकेनिज्म तो नहीं कम हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से
वीकनेस आ जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ जाएगी और उसकी वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी असर पड़ेगा, पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा। तो क्या जरूरत है कि हमें अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करने की? तो इस तरह से लोग ये नहीं समझते कि अगर उनको आज की तारीख में वैक्सीनेशन ना लेने की वजह से अगर कोविड-19 की बीमारी हो जाती है या कोविड हो जाता है, तो बेसिकली आप देखें कि उसकी वजह से कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चाहे वो कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए, सिर से लेकर पैर तक, आप हेडेक से लेके, मेंटल डिसऑर्डर से लेके, डिप्रेशन से लेके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लेके, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से लेके, या बेसिकली हमारे जॉइंट में पेन्स होना वगैरह, आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए, अब्डोमिनल सिस्टम, डायरिया, डायरियल डिजीजेस एंड ऑल, ये केवल बीमारी तक ही नहीं रहता बल्कि पोस्ट कोविड फेज में भी रहता है अगर हम कोविड-19 की या कोविड इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि पर्टिकुलरली आज की तारीख में तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आज की नारी को बहुत ही स्वस्थ रहने की जरूरत है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड भी है, अफेक्टेड भी है। ये मैं क्यों कहती हूँ? इन्फेक्शन तो उसको, चाहे वो किसी के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, तो जरूर इन्फेक्शन हो सकता है, परंतु अफेक्टेड क्यों है? क्योंकि उसको बाकी बीमार रहते हुए भी बाकी फैमिली मेंबर्स की भी देखभाल करनी पड़ती है। तो ये बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि जब से कोविड-19 का सिनेरियो आया है, हमारी बहुत सारी विमेन की जॉब्स भी चली गई हैं, क्योंकि वो टेक सेवी नहीं है, वो बेसिकली टेलीकम्यूटेबल जॉब्स में नहीं ऑक्यूपाई हो पाई हैं करके। तो इस तरीके से, और या वो अस्पताल में अगर नौकरी भी करती है नर्स के फॉर्म में, तो वो अगर उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते भी हैं तो पर्टिकुलरली वो अपनी जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको भी वो चेंज नहीं कर पाती हैं। तो जेंडर पर्सपेक्टिव जो है बहुत ज्यादा विमेन को अफेक्ट करता है विद रिगार्ड टू कोविड-19। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करें कि आज अगर हमारे 57 या 57 आदमी ले रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में 43 औरतें ही केवल वैक्सीनेशन ले रही हैं, और धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम रूरल एरियाज की तरफ या ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं तो ये डिफरेंस जब बढ़ता जा रहा है, तो हमें यहाँ पे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, पैरामेडिकल वर्कर्स को, आके डॉक्टर्स को जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो मैं कहती हूँ कि रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, हमारे ट्राइबल एरियाज, अर्बन एरियाज में भी, ये नहीं कि मिथ्स और मिसकंसेप्शंस केवल हमारे ग्रामीण एरिया में भी हैं। कई बार मैं तो ये कहती हूँ कि कई बार ग्रामीण एरिया की औरतें बहुत समझदार होती हैं, और ये मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस आपको इनकम्प्लीट नॉलेज से भी आती है। वो आधी अधूरी पढ़ाई जो है वो ज्यादा डेंजरस होती है। तो यहाँ पे हमें हर तबके को एजुकेट करने की जरूरत है कि आगे आए और अपना वैक्सीनेशन लगवाएं, और अपने को ही नहीं, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, सबको लगवाएं वैक्सीनेशन जो कि एलिजिबल एज में आती है, यानी कि 18 साल से ऊपर की। आज की तारीख में हम उन्हीं को लगा रहे हैं, तो उनको जरूर वैक्सीन लगाएं और कोई भी भेदभाव ना करें। आई थिंक आपने ये जो जेंडर पर्सपेक्टिव की बात की डॉक्टर, दैट बहुत जरूरी है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स वी फॉरगेट, व्हाट द मैसेज यू गिवन, दैट द मेन नीड टू कम आउट आल्सो एंड रिस्पॉन्सिबली गेट देयर वाइफ, सिस्टर्स, मदर्स वैक्सीनेटेड। ये आपने बहुत अच्छा इनफैक्ट ये सजेशन दिया, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मिथ्स है, वेदर इट्स इनफर्टिलिटी या चाहे जैसे आपने मेंस्ट्रुएशन के बाद बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पीरियड जल्दी आ गए, एंड दिस इज समथिंग पीपल डोंट टॉक अबाउट। वो सोचते हैं कि हाँ वैक्सीन नहीं लेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। अगला सवाल हम लेते हैं, do we have any registered clinical trials where participants have been pregnant women? So any trials have happened? You see, the trials have just started actually. अभी तक जो हम फिगर्स ले रहे थे, आंकड़े जो हमारे पास थे, वो हमने बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट किया था इन अमेरिका, जिसमें कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स भी थे। सो ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब हमने पूरा लिटरेचर को रिव्यू किया तो ये उभर के आया कि बेसिकली जो है प्रेगनेंसी में जरूर, अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन अगर कोविड हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी या तो अबॉर्शन में टर्मिनेट हो जाएगी, या बच्चा जो है लो बर्थ वेट होगा, यानी कि 2500 ग्राम से उसका वजन कम होगा, या फिर बेसिकली अगर हम देखें तो उसका स्टिल बर्थ भी हो सकता है, यानी कि बच्चा जो है वो लाइव पैदा नहीं होगा, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। तो इस तरीके से देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ही अच्छा और सुखद पीरियड है। हम जरूर चाहेंगे कि इसको बहुत अच्छा अनुभव माँ को दे, और वो तभी हो सकता है कि जब हम उसको चॉइसेस देते हैं,
पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू कोविड-19। और अगर बेसिकली वो डिसीजन नहीं ले पाती तो डिसीजन को फैसिलिटेट करने में हम उसकी मदद करें, पर चॉइस उसकी होनी चाहिए। कोई भी चीज हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। और बाय चांस उसका जैसे रह गया, उसको 2-3 दिन या 7 दिन या 10 दिन है डिलीवरी में, तो आज हम कहते हैं कि हर एक आपका एंटीनेटल पीरियड 9 महीने और 7 दिन का होता है, तो डिलीवरी 7-8 दिन आगे पीछे हो सकती है। तो ये जैसे ही डिलीवरी हो जाए तो फौरन वो आके अपना वैक्सीनेशन लगवाए। अगर उसका हफ्ता 10 दिन या 15 दिन रहते हैं डिलीवरी में, तो बेसिकली बेटर है कि जैसे डिलीवरी हो जाती है वो तुरंत जो है आके अपना वैक्सीनेशन करवाए। Okay, so the next question, we have from Shelly Vyas is, does the lactating woman need to stop breastfeeding for a few days after taking the vaccine? ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैं ये कहूंगी कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही कंप्लीट और होलसम फूड है। आपको कुछ भी 6 महीने तक पानी भी देने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप मदर जो है बहुत सक्सेसफुली और अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली बच्चा जो है माँ की बीट को जानता है करके, हार्ट बीट को, और उसकी वजह से जितना वो माँ बच्चे को अपने क्लोज रखेगी उतना ही इफेक्टिवली फीड कर पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि लैक्टेटिंग मदर जरूर लगवाए वैक्सीनेशन, ताकि ना कि केवल उसकी हमारी जो अच्छी इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज जाती है, प्लस कोविड-19 की एंटीबॉडीज भी जाएंगी, तो इस तरह से बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा। इनफैक्ट मैं वही एक और सवाल विच यू हैव सेड, आपने कहा जैसे ये एक मिसकंसेप्शन था मेरे जो आपने ऑलरेडी कवर किया, बट दिस क्वेश्चन वी कैन टेक। देयर हैव बीन रूमर्स दैट द कोविड-19 वैक्सीन मे नॉट बी effective during menstruation. That's one, and the other thing is कि it may harm the women as her immunity gets lower during menstruation. जी, ये आपस में अंबिका लिंक्ड है। वो ये सोचती है कि मेरा वैसे ही मैं मेंस्ट्रुअल पीरियड में हूँ, मेरे को माहवारी आई है, तो मेरा इम्यून मैकेनिज्म वैसे ही जो है डाउन है। अगर मेरी इम्यूनिटी डाउन है तो मेरे को इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बेसिकली मेंस्ट्रुएशन में फेज में हूँ और उसके ऊपर से मैं वैक्सीन ले लेती हूँ, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं वीक हूँ। ये कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट जो है ये वीकनेस का और मेंस्ट्रुएशन का भी बहुत ज्यादा हमारा वैसे भी जुड़ा हुआ है। तो ये हम जरूर कहना चाहेंगे यहाँ पे कि बेसिकली ये कोई भी ऐसा भ्रम जो है अपने दिमाग से निकाल दें, और माँ भी अगर अपनी बच्ची को समझाएगी जो कि 18 साल से ऊपर की है, और फैमिली भी समझाएगी कि उसको जाके वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत धारणाएं जो है इसको फैमिलीज में एक्चुअली ये प्रचलित है। तो अब बच्ची को डिसीजन लेने में कौन मदद करेगा, या माँ को डिसीजन लेने में कौन मदद करेगा, या लेडी को उसका हस्बैंड मदद करेगा या उसके फैमिली मेंबर्स करेंगे। और इसी तरह से जो हमारी बच्चियां हैं 18 साल से ऊपर की, उनकी मदद उनकी माँ करेगी या उनके फैमिली मेंबर्स करेंगे। तो आके वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे इतने ज्यादा हमारे मिथ्स जुड़े हुए हैं मेंस्ट्रुएशन से, कि ये हमारा जो मेंस्ट्रुअल फिनोमेना है ये इसको किसी तरह से मैं कहूंगी कि इसको इस तरह से देखा जाता है कि ये फिनोमेना जो है इसमें ये एक छुआछूत का फिनोमेना है। इसको आज के डेट में भी एक टबू माना जाता है। या बिल्कुल, उसको कहते हैं कि इस पीरियड के दिनों में तुम अपना बाल मत धो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम रिलीजियस बुक्स को टच मत करो। अब साथ साथ ये भी जुड़ गया कि आप वैक्सीनेशन भी मत लो। तो ये गलत धारणाओं को हमें हर स्तर पे बिल्कुल एड्रेस करना पड़ेगा। या पिकल को मत छुओ, अचार को, कि अचार खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन सभी गलत धारणाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे, और आज क्योंकि हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और हम पेंडेमिक की बात करेंगे, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो आके कोविड-19 वैक्सीनेशन या आपका वैक्सीनेशन का टीका लगवाए, ताकि वो सेफ रहे। बेसिकली हम नहीं चाहेंगे कि वो बच्ची या वो मदर या वो लेडी जो है कोविड का शिकार हो और बाद में उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। जी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इनफैक्ट आपने जैसे इतने अच्छी तरह समझा रहे हैं कि जो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस है, दैट whether it's to do with menstruation also the taboo. But another thing I was reading is somewhere that they आजकल कह रहे हैं कि जो हस्बैंड और वाइफ है, जो कपल है, उन्हें सेम वैक्सीन लेनी चाहिए। क्या ये भी एक मिथ है, या इसमें कितनी सच्चाई है? अंबिका, ये नेचुरल सी बात है कि ये दिमाग में आना कि मेरे हस्बैंड ने वैक्सीन लगाई, शायद वो बेटर वैक्सीन होगी,
और मैं ये वैक्सीन लगा रही हूँ, शायद इसकी क्वालिटी पुअर होगी। सभी वैक्सीन की एफिकेसी बहुत अच्छी है और आज की तारीख में हमारी यही रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बेसिकली कि जो वैक्सीन की हम पहली डोज लगा रहे हैं उसी की हमें दूसरी डोज भी लगानी है। यानी कि कोविशील्ड की हम पहली डोज लगाते हैं तो दूसरी की भी जो हमारी 12 हफ्ते पे लगेगी वो भी कोविशील्ड की दूसरी डोज लगेगी। और अगर कोवैक्सीन की एक डोज लगेगी तो 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की। परंतु अगर मान लो उनके हस्बैंड को, किसी औरत के हस्बैंड को अगर मान लो कोविशील्ड मिलता है और वाइफ को कोवैक्सीन मिलता है तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि एफिकेसी दोनों की लगभग समान है और जितनी एफिकेसी हमें चाहिए इंडिया के लिए उतनी है। मतलब अगर हम कहें कि कोविशील्ड एक शेड बेटर है, उससे उसकी एफिकेसी लगभग 70% के करीब है और कोवैक्सीन की थोड़ी ज्यादा है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें करीबन 60% के करीब एफिकेसी चाहिए वैक्सीन की, यानी कि फ्रॉम द सेफ्टी पर्सपेक्टिव, और दोनों वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। और अब आज की तारीख में तो स्पुतनिक भी है और अगले महीने हमारी मॉडर्ना भी अवेलेबल होगी हमको, और धीरे धीरे हमारे पास में ज़ाइकोवी डी भी आएगी और प्लस जिनोम की वैक्सीन भी आएगी। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे पास में बास्केट ऑफ चॉइसेस होंगी। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो जब तक हम इस भ्रम को दूर नहीं करेंगे, हम ज्यादातर औरतों तक पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको हमें हर स्तर पे एड्रेस करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन मटेरियल सरकार ने बनाया है और हर लेवल के वर्कर को भी ट्रेन किया गया है, राइट फ्रॉम फ्रंट लेवल वर्कर टू द टॉप लेवल वर्कर। एंड बहुत अच्छे कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हमने बनाए हैं बेसिकली, जिनको कि तैयार किया गया है कि किस तरह से लोगों को काउंसलिंग करना है और उनकी वैक्सीन हेजिटेंसी को हमने वैक्सीन ईगरनेस में बदलना है। I think vaccine hesitancy has to be turned into vaccine eagerness. In fact, जो आपने ये भी कहा कि there is a basket of choices, so many myths, and बहुत जरूरी है कि हम communicate करें जितने से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें, पर इसमें कहीं ना कहीं we have to give that push to women as well. So just a last question, if you want to sum up in brief, if I ask you, just for our viewers, we've taken quite a few questions. I think you've also cleared a lot of doubts and myths. The key is that COVID vaccination is very important, and the impact which it has on women, the vaccination which it has on women, most of it is, I think, like you said, whether it's menstruation, whether it's infertility, these are all myths. So anything in brief you would like to give a message to our viewers? You see, I'll say like that women are the backbone of the society, number one. हेल्थ ऑफ द वुमन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द फैमिली। आप देखेंगे कि अगर एक दिन औरत बीमार पड़ जाती है तो घर का पूरा ढांचा जो है वो बदलने लगता है करके, मम्मी क्यों बीमार है या फिर मेरी बहन क्यों बीमार है, क्योंकि बहुत सारे काम जो है नोइंगली हमारी इंडियन सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि वो फैमिलीज टोटली डिपेंडेंट हो जाती है कहीं ना कहीं लेडीज पे। और हमारी और नारी शक्ति मैं कहूंगी बहुत ज्यादा उसमें ऐसे ऊर्जा भी है और उसको हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट करना है। और उसको मैं ये कहूंगी कि हमें उसकी सेहत पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो अनीमिया हो, चाहे वो कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात हम करें और उसके दिमाग में जो भी शंकाएं आती हैं, चाहे वो महिला का हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे हम बात करते हैं एनजीओज की, चाहे हम बात करते हैं गवर्नमेंट मशीनरी की, सबको होलिस्टिक मैनर में जो औरत सबसे कोने वाले या जो नारी हमारे सबसे लास्ट माइल पे बैठी हुई है, हमें आज की तारीख में उस तक भी पहुंचना है और उसको कोविड-19 का मैं ये कहूंगी कि कोविड-19 के अगेंस्ट में उसका टीका लगाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ताकि हम ये कह पाए आज की तारीख में कि भारत ने दूर दराज के देशों में आखिरी माइल तक पहुंच के अपनी एक नारी को जो कि आखिरी माइल पे बैठी है उसका भी टीकाकरण किया है। Yes, last mile connectivity जैसे आपने कहा is very important, and I think इस पूरी fight में first of all we need to communicate to women that it's important for them to get the vaccine. It does not affect their health, and also in this whole thing जैसे आपने कहा last mile connectivity, आशा दीदीज and आंगनवाड़ी workers also play a very key role. Yes, definitely, very very important role, because वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। जब हमारी फ्रंट फोर्स स्ट्रांग होगी तो नेचुरल सी बात है कि ऊपर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, सभी लोग। और मैं ये कहूंगी कि चाहे वो सरकारी सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, हर लेवल पे हम जब बात करते हैं, जैसे मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ एक डे है,
उस दिन भी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट प्राइवेट सेक्टर की जाती है, वो भी एजुकेट करें कि आपने कोविड का वैक्सीन लिया कि नहीं लिया। सो बेसिकली जब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन का, तो ये जरूरी है कि हम ये देखें कि हर स्तर पे हमने महिला के टीकाकरण की बात जरूर करनी है। और मैं ये देखती हूँ कि महिला का टीकाकरण हो जाएगा तो आदमी का टीकाकरण अपने आप हो जाएगा। तो महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मेकर है हमारी सोसाइटी की, क्योंकि अगर वो टीका अपना करवाएगी तो वो जरूर देखेगी कि मेरे बच्चे का टीकाकरण होगा कि जब वो अवेलेबल होगा, मेरे हस्बैंड का टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वो इस तरह का उनका जो मानसिक सोच है वो इसी तरीके की बनी हुई है हमारे इंडियन सेटिंग में, कि बेसिकली वो पूरा उसकी सोच अपने फैमिली के दायरे के आसपास रिवॉल्व करती है। तो फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि महिला को, अगर आप एक महिला को एम्पावर करेंगे या उसको सशक्त बनाएंगे, तो उसके परिवार को सशक्त बनाएंगे और हमारे समाज को सशक्त बनाएंगे और देश को सशक्त बनाएंगे। एंड जैसे आपने कहा कि जैसे वो खुद अवेयर होंगी, खुद टीका लेंगी, अपने अपने आप को कोविड वैक्सीन का जो ये टीका लेंगे, अपने बच्चों को, आई मीन whoever इज ऑब्वियसली एलिजिबल फॉर इट, अपने हस्बैंड को, तो वो अवेयरनेस घर के एनवायरमेंट में भी वो स्प्रेड कर पाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर गर्ग, आपने हमें ये कितनी सारी जो मिसकंसेप्शंस थी और ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि women do need to get the COVID-19 vaccine and it does not have all these myths and misconceptions. Thank you so much for sharing these with us. थैंक यू अंबिका, ये जो आपने बीड़ा उठाया है, मुझे लगता है कि मैं कुछ समय बाद जरूर इसका इफेक्ट देखूंगी कि जरूर हमारी ये सोच और समझ और ये हमारा जो तरीका है बात करने का, ये हमारी आखिरी नारी तक जरूर पहुंचेगा, जो कि लास्ट कॉर्नर में छत्तीसगढ़ में बैठी है या हमारी लास्ट कॉर्नर में बिहार में बैठी है, मुजफ्फरपुर में बैठी है। तो जरूर इसका असर हम देखेंगे। अंबिका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. धन्यवाद। Thank you, doctor. थैंक यू।